Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In previous class, I will discuss about the class 11th topic of the form of business organization. The remaining part we will discuss today. The form of business organization is furtherly divided into three parts: private sector, public sector, joint sector. Private sector are furtherly divided two parts: non-incorporated, incorporated. Incorporated parts today we will discuss cooperative enterprise as well as the joint stock company. And public sector, non-incorporated, departmental undertaking, incorporated, public corporation and government company. Private sector are those sector of business consisting of business which under the ownership of the private individual or group of individual. Public sector are those sector under which the ownership of the particular state as well as public, and joint sector refer to that sector under which a public sector as well as private sector both are included. I already give the example in our previous class. Private sector, the example is that Reliance Group. Public sector, Bharat Heavy Electrical Limited. Joint sector, Madras Fertilizer. In non-incorporated, we already discussed about the sole trade, partnership, joint Hindu family as well as the other form of the business organization. Today we will discuss about the incorporated, cooperative enterprise, joint stock company. Cooperative enterprise are those enterprise, the voluntary association of person who join together with the motive of the welfare of the member. ये एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलकर एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं और उन सभी मेंबर्स का मेन मोटिव क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना. ये आपकी है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज और इसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. सेकेंड वन है आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी is also an incorporated form of the private sector because it is necessary to register under the Companies Act 2013. Company, what is company? Company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual succession and common seal. Company क्या है? एक artificial person है. Artificial person ना तो ये natural person की तरह डेथ हो सकती है और ना ही natural person की तरह बर्थ लेगी. हैविंग सेपरेट एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट होगी क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसमें इसके मेंबर्स और इसके जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, वो सेपरेट होंगे. परपेचुअल सक्सेशन, आपकी कंपनी की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगी. इसके लिए एक पर्टिकुलर कोटेशन भी आपकी मेंशन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी रन्स फॉरएवर. एंड हैविंग कॉमन सील, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है इसलिए सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की एक स्टैम्प बनती है कंपनी के नेम से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील. तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर का इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म था, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज और जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोऑपरेटिव एंटरप्राइज क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है who join together with the motive of the welfare of the member. What do you mean by company? A joint stock company is an artificial person created by law having separate entity with perpetual succession as well as the common seal. Now the public sector. The public sector is divided into two parts: non-incorporated as well as incorporated. Non-incorporated, I already explained about the non-incorporated. There is no need to any type of the registration under the particular act. In non-incorporated we include the departmental undertaking. Departmental undertaking refers to that public enterprise which is run as a part of the government department with the motive of the particular work. आपकी जो departmental undertaking है ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है जो अपने बिजनेस को रन करती है एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर रहकर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगी, वर्क करेगी. उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलेंगे. मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की
जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो एक पार्ट है बिजनेस का रन किया जाएगा ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न। इसकी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कंसर्न होगी, वो उसकी हेल्प से रन करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपकी इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है आपका। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की हेल्प से वर्क करेंगे। ये आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का एग्जांपल है। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपकी इंडियन रेलवे आएगी। इंडियन रेलवे को आप जो मिनिस्ट्री है कंट्रोल करने का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। उसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग refers to that public enterprise which run as a part of the government department under the control of the ministry concerned. I hope it's clear to you. Now the incorporated firm are furtherly divided to two parts: public corporation as well as the government company. पब्लिक कॉर्पोरेशन एक टाइप से ये इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म है, इसका हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और इसका जो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वो एक पर्टिकुलर एक्ट है आपका स्टेट लेजिस्लेशन, या आप ये कह सकते हो आपका जो पार्लियामेंट है उसके स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग 1934 के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज which is created by the public state act of the parliament of 1934 और state legislature। जो आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन है हम इसको क्रिएट करते हैं, और ये क्रिएट जो है स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जांपल है आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही एग्जांपल और है FCI, जिसको हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ये आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन था। नाउ द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट कंपनी। जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या होती है? नाम से मेंशन है गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है, बोथ। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच हैज मिनिमम 51% of paid up capital in the name of central government और state government। आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी? It refers to that public enterprise which has minimum 51% of the paid up capital। इसकी वो कंपनी जिसके पास कम से कम 51% पेड अप कैपिटल है, नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से या स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, या तो कंप्लीट हो, और पार्शियली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसके पास 51% पेड अप कैपिटल हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नाम से हो या स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, या पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से और पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के नाम से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी गवर्नमेंट कंपनी। नाउ द जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दैट। जॉइंट सेक्टर इज आर दो सेक्टर which are the combination of the public sector as well as the private sector. Joint sector are those sector या form of business organization which are both in which we include both the public sector as well as the private sector enterprise and business.
The form of business organization, the already explained about that. There are three types: private sector, public sector, and joint sector. In private sector, we include two types of the. First one is corporated and second one is incorporated. Non-incorporated. In non-incorporated private sector, we include sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, as well as other form. And incorporated, we include joint stock company as well as the cooperative enterprise. And in the public sector, we are furtherly divided in two parts: non-incorporated, incorporated. Non-incorporated, we include government. Non-incorporated, we include departmental undertaking, and in incorporated, we include the public corporation as well as the government company. तो आपकी जो गवर्नमेंट और पर्टिकुलर जो आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसमें आपने थ्री पार्ट डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज which is run under the control of the government department under the control of the ministry concerned. और सेकेंड वन वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक कॉर्पोरेशन. पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज है, फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है जो हमारी क्रिएट की जाती है स्टेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द 34. और आपकी लास्ट वन थी गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज की जिसमें 51%, कम से कम 51%, मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल in the name of the central government or state government, or partially central government or partially in one or more state government. I hope it's clear to you. It's all about the form of business organization. Thanks. Have a nice day.